Good morning, friends. Good afternoon and good evening. This is the science chapter, A standard. Our first chapter is crop production and management. How can we manage the crops and product it? Today we are going to learn about this. This is first chapter, that's why I need to explain to you something special. Whatever you are seeing here, yellow color highlighted words, these are according to me hard word for you. It is not easy to student to explain the hard word in a continue flow. That's why I first highlighted, I read it and highlighted this, and then this is the board where that highlighted words meaning will be displayed. So I request to all the students, just alert and maintain your notebook and the pencil, and whenever that hard word meaning will be shown, you must write down, read it and try to use in your daily life, because it will be the personality development class, it will be the English development class, and it will be the your syllabus complete class. It is a versatile class, it is multi-purpose class. So get ready, we are going to start our first chapter, crop production and management. So I request to all the students once again, it is better than mobile. You must use a pen drive and attach that pen drive with your TV, and then see this clipping on big screen, and it will be help to you more and more without any radiation of mobile. Okay, I suggested once again, don't use the mobile, just use a pen drive and use it. Okay, so let's go to start. When you don't know the meaning of the prime, that's why first word is prime. So I'll start the teaching. Chapter outline, there are 4 basic points we are going to learn. First is crops, basic agriculture practices, crop seasons, food from animals. मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर ए स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आप ए स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, और आपको मैंने पिछले साल जो पढ़ाया है वो आप लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाने की वजह से मैं जानता हूँ कि आप समझ भी पा रहे थे और लिख भी पा रहे थे. जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ मैं हिंदी का यूज करूँगा, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छा एक विद्यार्थी बनना है तो जिस भाषा में है उस भाषा में उसको समझने का प्रयास करोगे. अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरा फ़ोन नंबर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि आपको ये वीडियो क्लिपिंग के आधार पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने आपको समझा के देने का प्रयास किया है. इट इज़ अ ग्रेट ट्राई आई done by for you to explain line to line and word to word. Okay, just let's go. The first line we start to read. Food is the prime necessity of all living things. What does it mean by prime? Mukhya. Do not down this. Okay, to fulfill their requirement of food, plant make their own food by the process of photosynthesis. You don't know the meaning of photosynthesis? Just go and click Prakash Sansleshan. In last year, I explained to you, I know that in science, photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण किस तरह से पेड़ पौधे अपने खाना बनाते हैं, उसका पूरी श्रृंखला एक चैप्टर था आपको, उसमें हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन्ड इट ऑल. ओके, एनिमल एंड द ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. इंसान और जानवर अपना खुद का खाना नहीं बना सकते. दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. दे एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन. व्हाट इज मीन बाय ऑब्टेन? यू डोंट नो, तो जस्ट गो. प्राप्त करना. फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज फॉर ग्रोथ. जहां से हम खाना प्राप्त करते हैं उसका अपन उपयोग क्या करते हैं? तो यूटिलाइज, द मीनिंग ऑफ द यूटिलाइज इज उपयोग करना. तो यूटिलाइज करते हैं डेवलपमेंट एंड इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटी. हम लोग दैनंदिन जीवन की जो क्रियाएं हैं उन्हें करने के लिए
हम भोजन का सेवन करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हाट इज मीन बाय पैसेज, यू डोंट नो, जस्ट गो एंड क्लिक दिया। समय बीतने, जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन बींग्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोविंग प्लांट एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान क्या करते गया, फल फूल या खेती कैसे करना ये सीखते चले गया, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल, तो व्हाट इज मीन बाय डोमेस्टिक एनिमल, पालतू बनाना, तो किस तरह से जानवर को पालतू बनाना है और उसका उपयोग करना है ये सीख गया। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग द क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उसी तरीके से उसने क्या किया, रेयरिंग एनिमल्स का काम किया। व्हाट इज मीन बाय रेयरिंग, द पालना, तो उन्होंने इसी के चलते क्या किया कि जानवर को पालना शुरू किया और फसल उगाने की कला सीखते चले गया। देन क्लॉथिंग एंड द अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, तो जस्ट गो एंड टेल मी द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स एंड द रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड द अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? गुड। Agriculture is the world large and the most important industry. Just I ask you, which is the world's largest and most important industry? Which is agriculture. Very good. It is still the major occupation of people in our country, with the nearly 70% of the population engaged in this sector. Oh, what a great! इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। Just go. Question I am asking to you, how many percentage of the Indian peoples are engaged in agriculture sector? Yes, 70%. Good. So horticulture is a branches of agriculture that deals with the production of vegetable, fruits, flowers and decorative plants. I think everyone got it. Horticulture. Horticulture means जहाँ पे सब्जियां और फल उगाने का और डेकोरेटिव प्लांट्स लगाने का काम किया जाता है जिस क्षेत्र में, उसी को एग्रीकल्चर के एक ब्रांच है, उसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ड्यू टू, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ड्यू टू, जस्ट गो एंड क्लिक, के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज आल्सो इंक्रीज। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ है, एग्रीकल्चर उत्पादन की डिमांड बढ़ी है। This has led to a need for implementation of effective measures to increase the crop production and storage. तो what is meant by implementations? Just go and click, उपयोग में लाना। तो इसीलिए क्या हुआ कि जरूरत बढ़ गई, इसलिए बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और बढ़ाकर उसका स्टोरेज करने का काम शुरू हो गया। तो मेसर्स का मतलब जानते हैं, उपयोग, इसका उपयोग किया गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड विच आर ग्रोइंग बाय मैन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नो एज अ क्रॉप्स और क्रॉप्स प्लांट। एक ही जैसे, अब प्लांट्स किसको कहेंगे, जो एक ही जैसे धान की खेती अगर लगाते हैं, इफ यू शो द पैडी इन योर फील्ड, सो एक ही जैसे बहुत सारे होना, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रॉप कह सकते हैं। अगर एक आध धान का बीज बो दिया और उसको बोलेंगे हम खेती कर रहे हैं, उसको क्रॉप कहेंगे तो वो नहीं हो सकता। एक जैसे हजारों संख्या में जब होते हैं, जब धान की खेती देखती है तो पूरा धान ही धान दिखता है, उसी को हम लोग क्रॉप्स कह सकते हैं। इन इंडिया, some common crops plant grow and consumed in India are given in the table given on the next page. अगले पेज पे जो दिया गया है, जो कुछ चार्ट दिया है, उस चार्ट को हम लोग देखते हैं भी किस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड शब्द है कंज्यूम्ड, मतलब उपयोग करना, तो उपभोग करना, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, तो इस तरह से आपको वो चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। व्हाट द नेक्स्ट पेज इज सेइंग, सॉरी, next page is they are given the chart cereals. What is meant by cereal, you don't know? So अनाज, cereals means अनाज, और grain crops, उसको grain भी बोलते हैं, cereal भी बोलते हैं। cereal बोलो या grain बोलो, the meaning is same. Okay, examples they are also given
you just open your book and read it all things, because if I read all the tables for you, it take a more time, तो ज़्यादा समय हो जाएगा तो क्लिपिंग बहुत बड़ी बन जाएगी, तो ये कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए इसको आपको करना है, आपके पास बुक्स होगी, टेक्स्ट बुक होगा, वो आपको पढ़ना है और इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए किसको रूट क्रॉप्स कहते हैं, किसको ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं, किसको शुगर क्रॉप्स कहते हैं, किसको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, पल्सेस किसे कहते हैं, फाइबर क्रॉप्स किसे कहते हैं। दिस ऑल टेबल्स यू मस्ट नो। ओके, क्रॉप सीजन। नाउ लेट्स गो टू नो अबाउट द क्रॉप सीजन। In India, there are two main crop seasons for cultivating crops. These are known as Kharif crops and Rabi crops. How many type of the crop season in India? Two type of the crops. Which is they are? One is Kharif and second is Rabi crops. Very good. Do you understanding what the I'm saying and what that videos are appear in front of you? You will try to understand. Okay. Then first is Kharif crops. They are sown in rainy season from month of June and harvested around October. Everybody understand? The rainy season जब स्टार्ट हो जाता है तब जून से ही ये खरीफ क्रॉप अभी चल ही रहा है सीजन, खरीफ क्रॉप हम लोग देखते हैं। एंड हार्वेस्टेड मतलब फसल पककर जब जमा हो जा मतलब तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्टेड मतलब काटते हैं जब, उसी को हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। और दिवाली के आसपास, अक्टूबर महीने में दिवाली के आसपास हम लोग वो फसल किसान काटना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल्स पैडी, पैडी मतलब धान, पिजॉन मतलब उसको पी बोलते हैं हरर, अपन जानते हैं इस चीज को, मेज मतलब मक्का, कॉटन, सोयाबीन एंड द ग्राउंड नट्स आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, विच आर द खरीफ क्रॉप्स, ये क्वेश्चन बनता है, आई विल आस्क यू, देन यू मस्ट लर्न दैट। ओके, नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। सॉरी, these are sown in winter season from the month of October and the harvest around April. Okay, so रबी क्रॉप्स अक्टूबर से अप्रैल तक होता है और इस बीच में हम लोग ये रबी क्रॉप्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, पीस, etc आर रबी क्रॉप्स। ये सभी क्या है? रबी क्रॉप्स है। ओके, तो ये एक आपका सेकंड पेज भी खत्म होता है। नीचे सेल्फ चेक, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंड about this two page. They are also given the question answers: Rabi crops, Kharif crops, pulses, fiber crops, and tuber crops. You must write two name. So you can use this chart to write down this. But I already give that the meaning here, and you must write down peas, right? Then groundnut. You can stop the video and you can see that what that words is there. Okay, the answers are displaying there. You must write down properly. Cotton, jute, and then tuber crops which are ginger and then potato. So these are the crops list. Okay, then we are going to next slide. Wow, basic agriculture practice. तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहेंगे? जो फसल उगाने की एक श्रृंखला में, प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाती है, जो क्रियाएं की जाती है, उसी को हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। फ्रॉम सोविंग, व्हाट यू मीन बाय सोविंग? सॉरी, सोविंग मीन्स बोना है। यहाँ पे कई तो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, तो शायद आपको ये पता है कि ये वर्ड मैंने शायद दिया नहीं होगा, सॉरी। राइट, तो शोविंग मतलब बोना, हार्वेस्टिंग मतलब काटना, आपको पता है। आर नो एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बोना और काटने तक का जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। The basic agriculture practice which are common to all crops are given below. There are 8 points. The common agriculture practice के जो points हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं. Just go and read that. Preparation of soil, sowing, applying manure. What is mean by manure? तो manure का मतलब होता है खाद. हाँ, sowing मतलब बीज बोना,
हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। अब मैन्योर का मतलब होता है खाद, तो अप्लाइंग खाद, हम लोग खाद डालते हैं, ठीक है। इरिगेशन मतलब पानी देना। वीडिंग मतलब कचरा निकालना, वीडिंग मतलब कचरा निकालना। तो हम लोग किसान के बच्चे हैं तो हमको ये सारी चीजें पता है, वी नो द अबाउट दिस, ओके। 6 पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो फसल की रक्षा करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देता है किसान, किस तरह से देता है वो भी आपको पता है। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनिंग। तो हार्वेस्टिंग मतलब तो आपको पता है काटना, थ्रेसिंग मतलब उसको मड़नी बोलते हैं, तो मड़नी करना मतलब कचरा अलग करना और अनाज को अलग करना। और विनिंग मतलब जब हम लोग धान जब देखते हैं तो धान जब हम लोग मड़नी करते हैं तो उसमें कचरा भी रह जाता है, तो उसको हम लोग उड़ाते हैं, धान अलग करते हैं और कचरे को अलग करते हैं। इसको विननाव मतलब उसको मराठी में पाखड़नी जिसको बोलते हैं, विननाव का मतलब होता है पाखड़ना। तो 8 स्टोरेज, और सबसे महत्वपूर्ण है स्टोरेज करना, इसलिए बड़े बड़े गोदाम सरकार बना रही है अपने क्षेत्र में। कई पालक ऐसे होंगे जो गोदाम के मालिक हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देके गोदाम स्टोरेज करने के लिए बना के दे रही है, ओके। लेट्स अस नाउ लर्न अबाउट द एक्टिविटीज और टास्क इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन इन डिटेल। सो अभी हम लोग डिटेल में इन सभी 8 पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। जमीन की उस तरह से उपजाऊ बनाने के लिए हम लोगों को जमीन को तैयार करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। तो जमीन को हल्का बनाने के लिए इस तरह से क्रिया की जाती है। तो पहली क्रिया क्या है, तो प्लोविंग। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड द लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड द प्लोविंग और टिलिंग। प्लोविंग हेल्प्स द सॉइल इन अ नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। किस तरह से होता है उसका, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लोविंग, देयर आर गिवन द 6 पॉइंट। द इट परमिट इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। डीपर, डीपर मतलब अंदर तक के, खोल तक। पेनिट्रेट होना मतलब जस्ट राइट डाउन, पेनिट्रेट आपको मैंने बताया हुआ वर्ड है। पेनिट्रेट मतलब घुसना। तो वो क्या हो रहा है, जमीन अगर आपकी लूज है तो क्या होगा, फसल की जो जड़ें हैं वो अंदर तक घुस पाएंगी। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप फॉर प्लांट यूज। तो जड़ें अगर अंदर तक जाती हैं तो जो पेड़ पौधा होगा उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उनके पोषक तत्व जो होते हैं वो ज्यादातर उस पेड़ को या उस फसल को मिलने के लिए मदद होती है। इट हेल्प्स इन अपरूटिंग द वीड्स। और जो कचरा होता है वो आराम से उखाड़ने के लिए उसका उपयोग होता है। इट एक्सपोज सॉइल पेट्स टू नेचुरल प्रेडेटर्स। यू डोंट नो व्हाट इज द मीन बाय अपरूटिंग, तो उसका मीनिंग भी लिख लेते हैं। उन्मूलन करना मतलब निकाल फेंकना। और नेक्स्ट है प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकारियों, है ना। अभी शिकारियों के मतलब पेट्स, मतलब आप समझ पा रहे हैं, सॉइल पेट्स टू नेचुरल प्रेडेटर। जो जमीन के अंदर में आप देखते हैं कीड़े मकोड़े जो ज्यादातर होते हैं वो मतलब बाहर निकलते, तो हम लोग देखते हैं कि बगुले आते हैं या कोई पक्षी आते हैं और उस वक्त वो उन कीड़ों को खा जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर जमीन लूज हो तो वो क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहेगा। मतलब पानी का बूंद भी गिरा तो जो 10 मिनट में एक बूंद भाप बन सकती है। अगर जमीन अगर पोली होगी तो वो बूंद 1 घंटे तक रह सकता है, मतलब पानी का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है। इट प्रोवाइड गुड accretion to the roots. What do you mean by accretion? Just go and click. The meaning is रगड़ा to the roots. मतलब जड़ों को हिलाना, मतलब जड़ें अगर फसल जब हिलती हैं तो उसकी जड़ें भी थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, और जड़ें मूवमेंट होने के कारण उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना शुरू होता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो जमीन से लेना शुरू करते हैं। द मेन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर द प्लोइंग आर प्लो, हो और कल्टीवेटर। दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट implements agriculture instruments are plow, hoe and cultivator the farmer using. A plow is made of wood and iron. It is know everyone. It is normally drawn by
फार्म एनिमल्स सच एज बुलक्स। DRAWN ड्रॉन मतलब खींचना, तो बैलों के द्वारा नांगर जो होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्लो। तो नांगर बैलों के द्वारा खींचा जाता है, बुलक्स मतलब बैल। इट हैज टू पार्ट्स, द प्लोशेयर, उसके भी दो भाग है, प्लोशेयर आप जानते होंगे, एंड द प्लो शाफ्ट। द प्लोशेयर इज द ब्रॉड ट्रायंगुलर आयरन ट्रिप्स। अब देखेंगे, अब सब किसान के बच्चे तो अब सबको पता है ये चीज। देखें, द प्लो शाफ्ट इज अ लॉन्ग एंड द नैरो शाफ्ट ऑफ द वुड अटैच टू द बीम। अपन जिसको जू बोलते हैं वो भी आप जानते हैं। बैल को जहां मतलब बांधा जाता है वो सारी चीजें आपको पता है, और उस हिसाब से उसका प्लोइंग होता है। आप हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बच्चे हैं तो आराम से समझ जा रहे हैं। द हो इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। तो हो आपका है कि भाई कचरा निकालने के लिए यूज होता है, या जमीन को हल्का करने के लिए भी यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देयर आल्सो गिवन द पिक्चर्स, दैट्स व्हाई यू नीड नॉट टू worry about what is the hoe. The picture is here and the ideas will be clear. The cultivator, everybody know about that cultivator, because now you are saying that the number of farmers are using the tractors, the modern equipment for the plowing the land. So every students are familiar with this instrument. Okay, the cultivator is the flow tool that has the multiple blades. Blades मतलब आरिया जो होती है ना, ये लगी हुई है, आप देख रहे हैं, है ना, blades. नाउअडेज का मतलब बताइए। नाउअडेज मीन्स हाल में, अभी में जो होता है उसको नाउअडेज रेडी सर स्टार्ट द क्लासेस, नाउअडेज वी आर गोइंग टू लर्न ऑन ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी अभी जो हो रहा होता है उसको नाउअडेज बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्टिवेटर। ऑल्दो ट्रैक्टर इज एक्सपेंसिव बट इट इज सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। तो श्रम को बचाता है, भले ही एक्सपेंसिव मतलब महंगा है, लेकिन ये आपके श्रम को बचाता है, आपके समय को बचाता है, इसलिए हम लोगों ने ट्रैक्टर को रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज फिफ्थ स्लाइड, लेट्स गो टू नो। तो इट इज द फर्स्ट डे क्लास इज कंप्लीट, सेकंड डे क्लास विल बी स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट आपको इतना सीखना है, क्योंकि एक पीरियड में जितना पढ़ाया जाता है उतने का एक स्लाइड बना के दिया हुआ है, ताकि आप समझ सके इस चीज को। आराम से सारी चीजें करना है, हमारे पास समय बहुत है। इस क्लिपिंग के आधार पर हम लोग सिलेबस इसलिए खत्म करें क्योंकि आने वाले समय में कब स्कूल स्टार्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो हमारा एक साल घर बैठे यूं ही बर्बाद ना हो, तो इसलिए हम लोग प्रयास करें। अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, या सितंबर में स्कूल कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन समय पे नहीं होगा। जैसे जून में हुआ करती थी, जुलाई में हुआ करती थी, इस तरह से स्कूल स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, इस तरह से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। और even a small dot can stop big sentence, but few more dot can give a continuity. तो कोरोना ने हमको एक स्मॉल डॉट दे दिया, हम स्टॉप हो गए, लेकिन हम लोग ऐसे बहुत सारे स्टॉप्स लेंगे, डॉट लेंगे, और जिससे हम लोग कंटिन्यूटी को बनाते हैं। सो लेट्स गो टू फर्स्ट डे क्लास सक्सेस, सेकंड डे क्लास। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन सेकंड डे क्लास। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज there is some problem. What is that? मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। I need to some back.